وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا يجز به. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی کے اعمال کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہر عمل اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے. اعمال یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکیاں بنتے ہیں. اعمال یا تو شر بنتے ہیں یا پھر خیر بنتے ہیں. اعمال یا تو برائی کی شکل اختیار کرتے ہیں یا پھر بھلائی کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ ہر عمل کا پہلو ہوتا ہے. اعمال کی یہ دو پہلو، یا تو وہ خیر کا پہلو بنے گا یا شر کا پہلو، نیک اعمال کا پہلو یا پھر گناہ کا پہلو، برائی کا پہلو یا پھر بھلائی کا پہلو. عمل کا شر اور خیر ہونا، بھلائی یا برائی کا ہونا، اور پھر گناہ یا نیک عمل کا ہونا، اس کا کیا اصول ہے؟ ہم کیسے طے کریں کہ یہ بھلائی والا عمل ہے اور یہ برائی والا عمل ہے؟ ہم کیسے طے کریں کہ یہ گناہ والا عمل ہے اور یہ نیکی والا عمل ہے؟ اس کے لیے ایک اصول شریعت نے دیا. اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کی چاہت کے خلاف ہو، منشا کے خلاف ہو، اور پھر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی خالی ہو، تو پھر وہ عمل گناہ کہلائے گا، برائی کا عمل کہلائے گا، شر کا عمل کہلائے گا. اور اگر کسی عمل میں وہ عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، اس کی منشا کے مطابق ہے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام بھی ہے، تو پھر اب یہ عمل نیک عمل سمجھا جائے گا، خیر اور بھلائی والا عمل سمجھا جائے گا. تو یہ ہر عمل کے دو پہلو میں سے کوئی نہ کوئی ایک پہلو ہر عمل میں رہتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ہر عمل چاہے وہ چھوٹا ہو
یا بڑا، ہر عمل کی اپنی تاثیر ہے، ہر عمل کا اپنا اثر ہے، چاہے گناہ کا عمل ہو چاہے نیکی کا عمل، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عمل کا اپنا اثر ہے، اپنی تاثیر ہے۔ کوئی بندہ جب نیک عمل کرتا ہے، جب نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس نیک عمل کی تاثیر اور اس کا اثر انسانی زندگی پر پڑنا لازمی ہے۔ نیک اثر کی تاثیر کیا ہوگی؟ جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس کی تاثیر اس کی زندگی پر یہ ہوگی کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ ہمارے یہاں برکت کا مفہوم الگ ہے۔ ہم برکت کو کیا سمجھتے ہیں کہ برکت کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو۔ برکت کا مفہوم بہت زیادہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ کو تو کثرت کہیں گے، برکت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ رزق ہو، مال میں برکت کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال ہو۔ برکت کا مفہوم کثرت نہیں ہے۔ برکت کا مفہوم یوں سمجھیں کہ جتنا آدمی کو، انسان کو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں اس کی زندگی چلتی رہے، یہ ہے برکت۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ مال و دولت کی بہتات ہو۔ جو اللہ پاک نے رزق ہمیں دیا ہے اس میں زندگی کی گاڑی چلتی رہے، یہ برکت ہے۔ اگر کسی کی زندگی اس میں چل رہی ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کو اللہ نے برکت سے نوازا ہے۔ چونکہ ہمیں اس کا مفہوم پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ برکت عطا فرما، جبکہ ہماری زندگی برکتوں ہی میں چل رہی ہوتی۔ تو نیکی کا عمل، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتے، صحت میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، خاندان میں برکت ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے نیک عمل کی تاثیر اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ایک سرور ملتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک وزن، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ یہ نیک اعمال کی تاثیر اور اثر ہے جو انسانی زندگی پر پڑتی ہے۔ اور وہیں گناہ کی بھی اپنی تاثیر ہے، گناہ کا اپنا اثر ہے، اس لیے کہ ہر عمل اپنے اندر کوئی نہ کوئی اثر رکھتا ہے، کوئی عمل اثر سے خالی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کی تاثیر اور اس کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ گناہ کا اثر اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کمائی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق تنگ کیا جاتا ہے، رزق تنگ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک جو اثر گناہ کا انسانی زندگی پر پڑتا ہے گناہ کا، وہ یہ ہے کہ اس گناہ کا اثر، اس کی تاثیر یہ ہے کہ گناہ دل کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، ایک بے چینی سی کیفیت اس کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وقاعت نہیں ہوتی، اور پھر وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ یہ گناہ کی تاثیر اور گناہ کا اثر ہے جو انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔
गुनाह का एक असर ये भी है कि जब कोई आदमी गुनाह करता है तो उसकी जिंदगी पर ये असर पड़ता है कि वो किसी दूसरे के ताल्लुक से कोई शक हो, किसी गुनाह के ताल्लुक से, तो बस उस शक की बुनियाद पर वो उससे नफरत करता है, ताना दे रहा होता है, तंज कस रहा होता है। और जबकि खुद अपनी जात के ताल्लुक से इस बात का उसे इल्म है कि मैं फला गुनाह में मुब्तला हूँ, उसे पता है कि मैं इस गुनाह का शिकार हूँ, मेरी जिंदगी में यह गुनाह मौजूद है, उसके बावजूद भी वो अपने नफ्स से मोहब्बत कर रहा होता है, अगर अपने आप से मोहब्बत कर रहा होता है, ये भी गुनाह का असर और उसकी तासीर का नतीजा होता है। तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि गुनाह का असर इंसानी जिंदगी पर लाजमी तौर पर पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बंदा गुनाह करे और उस गुनाह का असर उसकी जिंदगी पर ना पड़े, यह मुमकिन नहीं है। जरूर गुनाह का असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। आप देखें, गौर करें कि कितनी चीजें ऐसी हैं जो अपना असर रखती है। मसलन आप पानी को लें, पानी का अपना असर है, उसकी अपनी तासीर है। उसकी तासीर ये है, उसका असर ये है कि वो इंसान को गीला करता है, इंसान को उसकी प्यास बुझाता है, ये उसकी अपनी तासीर है। इसी तरह आग की तासीर है जलाना, वो अपने अंदर असर रखती है। इसी तरह हवा को लें, हवा की अपनी तासीर है कि वो लोगों को ठंडक पहुंचाती है, हवा पहुंचाती है, राहत पहुंचाती है। इसी तरह गुनाह भी अपना असर रखता है, और गुनाह की तासीर और गुनाह का असर ये है कि वो इंसान के दिल को हमेशा परेशान किए रखता है, हमेशा परेशान किए रखता है, बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। गुनाह यूं समझें कि एक कैंसर की तरह। जो आदमी कैंसर का शिकार हो जाए तो फिर अब उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज बस यही है कि उसको उसके जिस्म से निकाल दिया जाए, यही उसका इलाज होता है। बिल्कुल इसी तरह गुनाह का इलाज भी यही है कि गुनाह का इलाज ये है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको जिंदगी से निकाल दिया जाए। अगर कैंसर को जिस्म में छोड़ दिया जाए, उस पर तवज्जो न की जाए, तवज्जो न दी जाए, तो फिर क्या होगा? तो वो कैंसर बढ़ेगा इंसान के जिस्म में, और यहाँ तक नौबत आएगी कि वो इंसान को मौत के मुंह में धकेल दे। तो इसी तरह जो आदमी गुनाह को नहीं छोड़ता या अपनी जिंदगी में गुनाह को बाकी रखता है, तो फिर वो ये गुनाह उस शख्स को जहन्नम के मुंह में धकेल दे। इसलिए जब गुनाह इंसान से होता है और इब्तिदाई मरहले में होता है तो फौरन उसको वही खत्म कर देना चाहिए। जब गुनाह इब्तिदाअन होता है और पहले मरहले में होता है तो उसको छोड़ना बहुत आसान है। पहली दफा किसी से कोई गुनाह हुआ तो फौरन उसने तौबा की और आइंदा इरादा करे कि भाई मैं आइंदा से नहीं करूंगा, तो ये गुनाह उसके लिए छोड़ना आसान हो जाए। जैसे जब पता चले कि इस बंदे को कैंसर की बीमारी है, कैंसर, और पहले स्टेज ही से उसका इलाज शुरू किया जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन है, उस आदमी की जान बच सकती है। लेकिन अगर उस बीमारी को यूं छोड़ दिया जाए, उस पर तवज्जो न की जाए, उसका इलाज न किया जाए, तो फिर ये
बढ़ते बढ़ते इंसान को मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब अब कोई आदमी गुनाह पर तवज्जो नहीं देता और इब्तिदाई तौर पर ही उस गुनाह को नहीं छोड़ता, तो फिर वक्त के साथ साथ वो गुनाह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और इतना सख्त हो जाता है कि उसके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये इसी गुनाह की वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक भी हो जाता है। इसलिए गुनाह पहले मरहले में यूँ समझे कि बिल्कुल कच्चे धागे की तरह होता है। जिस तरह कच्चे धागे को अगर तोड़ना चाहे तो बहुत आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, तो इसी तरह जब कोई बंदा किसी गुनाह में मुब्तला होता है पहली दफा, अगर वो चाहे तो फिर तौबा करके उस गुनाह से अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अगर उसने तौबा नहीं की और उसमें तवज्जो नहीं दी तो फिर ये धीरे धीरे वक्त के साथ कच्चे धागे से बढ़कर जंजीर की तरह मजबूत हो जाता है। फिर इस गुनाह से बचना और अपने आप को बचाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि गुनाह का असर इंसानी जिंदगी पर जरूर पड़ के रहता है। ये हो नहीं सकता कि इसलिए कि उसकी तासीर है, हर चीज की अपनी तासीर है, वो उसका असर दिखा के रखती है, तो फिर गुनाह की भी तासीर है, गुनाह अपना असर दिखा के रखता है। कितने ऐसे लोग हम सबको मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को हम जानते हैं, वही कहते हैं कि जी सब कुछ है, सब कुछ है, माल है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ओहदे हैं, मनसब है और कारोबार भी ठीक ठीक चल रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी दिल परेशान है, दिल मुतमईन नहीं है, दिल बेकरार रहता है, एक बेचैनी से महसूस होती है। क्यों? इसलिए कि इसी गुनाह की तासीर और उसके असर का नतीजा होता है। इंसान ये दो चीजों के मिलाप का नाम है, जिस्म और रूह। जिस्म की गिज़ा अलग है, रूह की गिज़ा अलग है। ये जितनी मादी चीजें हमें नजर आ रही है, माल, दौलत, अहदे और जितना जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ये सब जिस्म की गिज़ा है। इससे जिस्म को तो हम बना संवार सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं, इसलिए कि इसकी गिज़ा है। रूह की गिज़ा ये मादी चीजें नहीं है, रूह की गिज़ा अल्लाह की याद है, नेक आमाल है, नेकियों भरी जिंदगी है, भलाई की जिंदगी है, जो रूह की गिज़ा है। और जब रूह को गिज़ा मिलती है तो फिर इंसान को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, चैन मिलता है। जरा हम गौर करें कि आज कितनी चीजें इस दुनिया में मौजूद है, सहूलत के एतबार से कितनी चीजें हैं और क्या क्या चीजें हैं, किस्म हर किस्म के खाने हैं, गिनना मुश्किल हो जाता है, इतनी किस्म के पकवान, मशरूबात लें कि हजारों किस्म के मशरूबात हैं, जूस हैं। मकान देखें कि एक से एक मकान है, महलात हैं। सवारियां देखें कि अजीब व गरीब सवारियां हैं और हर आए दिन कोई ना कोई चीज ईजाद की जाती है, और ये सारी चीजें इसलिए हैं कि इंसान को सहूलत मिले, उसे राहत मिले, उसे परेशानी ना हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी इंसान को सुकून नहीं मिल रहा, इंसान बेचैन है, बेकरार है, परेशान है। क्यों? इसलिए कि ये सारी मादी चीजें सुकून का जरिया नहीं है, ये सारी मादी चीजें इंसान की रूह की गिज़ा नहीं है, ये तो जिस्म की गिज़ा है। आज जितनी सहूलियात हैं और जितनी चीजें हैं, इससे पहले दुनिया में इतनी सहूलियात नहीं थी, और इन तमाम सहूलतों के बावजूद भी इंसान जितना परेशान है उतना आज से पहले कभी नहीं था। तो हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है।
آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی سہولتوں کے باوجود بھی انسان پریشان ہے؟ دو لفظ عام طور سے استعمال ہوتے ہیں، ایک ڈپریشن اور ایک دوسرا ہے ٹینشن۔ ہر چوتھے پانچویں بندے کے منہ سے آپ یہ سنیں گے کہ ڈپریشن اور ٹینشن، ہر چوتھے پانچویں آدمی کے منہ سے نکلے گا۔ ڈپریشن اور یہ ٹینشن یہ انگریزی زبان کے الفاظ ہیں، اور اردو زبان میں اس کا ہم معنی کوئی لفظ نہیں۔ اردو زبان میں اس کا ہم معنی کوئی لفظ نہیں ہے ڈپریشن اور ٹینشن کا۔ کیوں بھائی؟ کیا اردو زبان کوئی اپاہج زبان ہے؟ اردو زبان کیا اتنی کمزور زبان ہے؟ کیا اردو زبان اتنی اس کی وسعت اتنی نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈپریشن اور ٹینشن کے کوئی الفاظ نہیں؟ ایسا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے اکابرین نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا تھا، اور ان کی زندگی اتنی بھلائی اور خیر اور نیک و کار کی تھی کہ ان کی زندگی میں ڈپریشن اور ٹینشن کچھ تھا ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشن کیا چیز ہوتی ہے۔ اور جب جو چیز سامنے نہ ہو تو پھر اس کا نام کیسے تجویز کیا جائے گا؟ کہ بچہ سامنے ہو تو پھر نام رکھیں گے، بچہ سامنے نہیں ہے تو پھر نام کیسے رکھا جائے گا؟ کوئی آدمی آ کر کہے کہ مولانا صاحب کوئی مجھے بچے کا نام بتائیں، آپ پوچھیں گے کہ بچہ، وہ کہے کہ اولاد تو کوئی نہیں ہے، بس آپ نام بتائیں۔ آپ کیسے نام بتایا جائے گا؟ تو انہوں نے، ان کی زندگی میں نہ ڈپریشن تھا نہ ٹینشن تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی نام ہی اس کا تجویز نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی زندگی اس طرح اللہ سے تعلق اور نیک اور بھلائی اور خیر سے بھری ہوئی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، ٹینشن کیا چیز ہے۔ یہ تو انگریزی زبان سے الفاظ نکل کر اردو میں منتقل ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے غافل زندگی گزارتے ہیں، جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، جو برائیوں بھری زندگی گزارتے ہیں، تو پھر وہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ بس سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، راحت تو اللہ کی یاد میں ہے، چین تو نیک اور بھلائی والی زندگی میں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا کہ خبردار، غافل نہیں رہنا اس بات سے کہ دلوں کا سکون، دلوں کی راحت میری یاد سے وابستہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال، دولت، شہرت، عزت، عہدے، منصب، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کا سکون میری یاد سے وابستہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ گناہ کا اثر انسانی زندگی پر ضرور پڑ کے رہتا ہے۔ کوئی آدمی گناہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ دیکھیں میں نے ابھی جھوٹ کہا، کچھ اثر نہیں ہوا، اور مجھے کسی نے کوئی نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، تو اس غفلت میں نہ رہے۔ اگر آپ نے جھوٹ کہا تو اس کا اثر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یا پھر کسی وقت اس کا اثر آپ کی زندگی اور ہماری زندگی پر ضرور پڑے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی یا کوئی گناہ کیا تو میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کوئی نافرمانی کی اللہ کی یا کوئی گناہ کیا تو پھر میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اثر دیکھا کہ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میری بیوی پر اثر یہ تھا کہ میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی۔ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا تو پھر اس نافرمانی کا اثر میں نے اپنے اولاد میں دیکھا کہ اولاد میرا کہا نہیں مانتی تھی۔ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں نے اس کا اثر
अपने मातहतों, अपने गुलामों, अपने खादिमों में देखा कि मैंने कोई काम उनसे कहा और उन्होंने उसे करने से इनकार किया। हत्ता कि फुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि जब मैंने अल्लाह की नाफरमानी की तो मैंने उसका असर मैंने अपनी सवारियों में देखा कि सवार जानवर मुझे सही रास्ते पर नहीं ले जाता, वो कहीं भी दाएं और बाएं मुझे ले जाया करता। तो अब ज़रा देखें कि हम जो गुनाह कर रहे हैं तो फिर उस गुनाह का असर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी बीवी पर पड़ रहा हो, औलाद पर पड़ रहा हो, खानदान पर पड़ रहा हो, या अपनी ज़िंदगी पर पड़ रहा हो, या अपने रिस्क पर पड़ रहा हो, या अपनी सेहत पर पड़ रहा हो, और ये पढ़ के रहेगा, ये पढ़ के रहेगा। जब कोई आदमी गुनाह करता है तो उसकी सज़ा तो आखिरत में मिलनी है ही, मिलेगी, लेकिन उस गुनाह का असर इंसान की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ेगा। गुनाह का असर क्या होगा? जब आदमी कोई गुनाह करता है तो चूंकि गुनाह की तासीर है, गुनाह का असर ये है कि फिर वो इंसान की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी से सेहत ख़त्म हो जाती है, उसकी सेहत की बरकत ख़त्म हो जाती है। और जब सेहत की बरकत ख़त्म होती है तो क्या होता है कि घर का हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार पड़ता है। एक सेहत याब होता है कि फिर दूसरा डॉक्टर के पास, और वो सेहत याब हुआ ही था कि फिर तीसरा डॉक्टर के पास। अब लोग परेशान होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद किसी ने घर पर जादू किया होगा, किसी पड़ोसन ने, किसी रिश्तेदार ने शायद हमारे घर पर जादू किया, और ये आमिलों के चक्कर काटना शुरू करते हैं। बस जादू वादू कुछ नहीं है, ये हमारे अपने गुनाह का असर है, ये हमारे अपने गुनाह का असर है। कि आदमी जब गुनाह करता है तो फिर उसका असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। जब आदमी गुनाह करता है तो फिर उसका असर इंसान के रिस्क पर पड़ता है, रिस्क की बरकत खत्म की जाती है, रिस्क को तंग किया जाता है। और जब रिस्क तंग होता है तो क्या होता है कि लोगों को शिकायत रहती है कि कारोबार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कोई डील करता हूं तो वो अधूरी हो जाती है। और फिर वो ये सोचता है कि शायद किसी ने जादू किया होगा कि मेरी तिजारत ना चले, मेरा कारोबार ना चले। अभी फिर आमिलों के चक्कर काटता है। जादू कुछ नहीं है, ये हमारे अपने गुनाह की नौसत है। अल्लाह ने साफ कुरान में कहा है कि गुनाह की नौसत ये होगी कि उसके रिस्क को तंग किया जाएगा, रिस्क को तंग किया जाएगा। घर में 5-6 अफराद कमा रहे हैं, नौकरी वाले हैं और सब जॉब पर हैं, सब काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं, खर्चे हैं कि काबू में नहीं आ रहे हैं। ये रिस्क की बेबरकती, ये गुनाह की इस तासीर और असर का नतीजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जो कोई हल्का सा भी गुनाह का अमल करेगा उसका बदला दिया जाए। आखिरत में तो होगा ही, दुनिया में भी होगा। यूं समझें गुनाह को कि बिजली का तार, बिजली का तार, अगर कोई बिजली के नंगे तार को पकड़े तो क्या उसे शॉक नहीं लगेगा, क्या उसे झटका नहीं लगेगा? या कोई आज तक हमें कोई किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हुई है जो कहे कि मैंने बिजली के नंगे तार को पकड़ा और मुझे कोई झटका नहीं लगा, मुझे कोई करंट नहीं लगा? जो बंदा बिजली के नंगे तार को पकड़ेगा उसे झटका जरूर लगेगा। इसी तरह जो गुनाह करेगा तो फिर गुनाह का झटका उसको जरूर लगेगा। और ये गुनाह का झटका कभी रिस्क की तंगी की शक्ल में आएगा, कभी सेहत की खराबी की शक्ल में आएगा, कभी उम्र की बेबरकती की शक्ल में आएगा, कभी माल की तंगी की शक्ल में आएगा, बहरहाल आएगा। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें गुनाह करने से पहले कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अगर कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए इस गुनाह का असर मेरी जिंदगी में जरूर आएगा। मुमकिन है कि जवानी के गुनाहों का असर इंसान को बुढ़ापे में उसको देखने को मिले,
जवानी में तो इसने बहुत गुनाह किया और समझा कि गुनाह का तो कोई असर मेरी जिंदगी पर नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अल्लाह ने ढील दी नहीं की, अब इसकी पकड़ इसके बुढ़ापे में हो। इसलिए ये जो परेशानियां और मुसीबतें, आफतें और दिल की बेकरारी और बेचैनी, इन तमाम का ताल्लुक इंसान के अपने गुनाह से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, अल्लाह ने साफ कहा कि तुम जो ये मुसीबतों का रोना रो रहे हो, परेशानियों का जो रोना तुम रो रहे हो, ये मैंने नहीं भेजी, ये तुमने खुद अपने हाथों से कमाए। गुनाह करोगे उसका असर तुम पाओगे। इसलिए हमेशा चाहिए कि हम गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ करते रहें कि ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से पाक जिंदगी अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, राहत और सुकून वाली जिंदगी हमें अता फरमा। अल्लाह ताला हमें इन कही की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान ये भी सुने कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ मुल्क भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमा पर, इशारे पर, हिदायत पर मुल्क भर में और रियासत भर में जगह जगह एहतजाजात हो रहे हैं, प्रोग्रामात हो रहे हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज बीजापुर में वक्फ बचाओ ज़ेर निगरानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बीजापुर में दरबार ग्राउंड में असर के बाद से लेकर इशार तक एक एहतजाजी अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बहुत ही अहम रुकन हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी दामद बरकातुहू तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि आप और आप अपने दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चूँकि वहाँ औरतों के लिए भी इंतज़ाम किया गया है, आप सब उस प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बनाएं। हम तो पहुँचना ही है, इसलिए कि ज़िले भर के लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, ज़िले भर के लोग आ रहे हैं, दावतें चली हैं और बहुत बड़ा मजमा आ रहा है। हमें इस जलसे में शिरकत करके उस वक्फ कानून के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी और अपने गम और अपने गुस्से का इज़हार करना है। लिहाजा आप ज़रूर इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.